Hello dear students, welcome back in our today's class. So as we have started our chapter number 9, that is carbon compound. This chapter is very easy and it is very important also. Okay, so in our last class we have learned about some electronic configuration to attain the neon electronic configuration. Okay, that we have learned, and we have learned a very interesting things, a very interesting topic, that is bonds in the carbon compound. Okay, so here you can see, if we are going to take one atom of here hydrogen and here also one molecule, then what we will get? 1 1 2, we will get H2, and here this 2 electrons will form one single bond. So this bond hydrogen, this is a single bond. Okay, so this is called as what? Dot structure. Dot structure मतलब क्या? ये जो दोनों डॉट है इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर. एंड लाइन स्ट्रक्चर विच मीन्स हियर यू कैन सी दिस इज अ बॉन्ड, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ single line. Okay, so that is called as what? A single bond. Okay, so it is called as a line structure. जहाँ पे डॉट होगा उसको डॉट स्ट्रक्चर, एंड जहाँ पे लाइन होगी इसको लाइन वाला स्ट्रक्चर. ठीक है, so one electron of this hydrogen will form H2 molecule, that is, and the 2 electrons will always form one bond. Okay, so it is called as a single bond. Then what about here? This here you can see the oxygen atom. Its electronic configuration is what? Outermost shell consists of 2 3 4 5 6 electrons. Okay, that means its electronic configuration is 2 6. So if we are going to take the 2 oxygen molecule, 2 atoms of oxygen, then here we can form over here, that is a 2 bond. एंड जहाँ पे 2 बॉन्ड होंगे उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज अ डबल बॉन्ड. सेम थिंग एप्लीकेबल ओवर हियर, दैट इज फॉर नाइट्रोजन. Okay, its electronic configuration will takes place as 2 5, as it having the atomic number क्या है नाइट्रोजन का? 7. Okay, so here we can see that it will form the 3 bond which is called as a triple bond, एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएंगे. सो टिल दिस वी हैव लर्नड इन आवर लास्ट क्लास. सो दैट वाज अबाउट अ रिव्यू ऑफ क्लास. सो सिमिलरली लेट अस कंसिडर अ कार्बन कंपाउंड मीथेन. मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH4, मतलब कार्बन का एक मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 4. ओके, वी सॉ दैट द कार्बन एटम फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड using the valence electron, yes, to attain the configuration of nearby noble gas neon. Okay, तो यही हम लोगों ने देखा in our last thing, in our last part. Okay, so here you can see the carbon has atomic number कितना कार्बन का है? 6, and its outermost shell consists of how many electron? 4 electrons, as its electronic configuration is 2 4, दैट इज 6. तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, एंड हियर द 2 electrons are there in the K shell, and then in the L shell you can see the 4 electrons. Okay, so now what we are going to do here, 4 hydrogen atom and 1 carbon atom. Okay, ये इसका हम लोग फॉर्म करने वाले हैं दिस स्ट्रक्चर. तो कार्बन एटम तो एक ही है, येस, एंड हाइड्रोजन के 4 एटम्स है. तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये है. इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का ये एक है, और इसका ये एक है. नाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन एवरीथिंग. जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल पे ध्यान देना है. तो आउटर मोस्ट शेल में कार्बन का यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था? 1. ओके, तो यहाँ पे एक आएगा कार्बन का और एक आएगा हाइड्रोजन का. सो दिस इज कंप्लीटेड. नाउ हियर ऑल्सो यू कैन सी एक हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल का, और एक कार्बन का आउटरमोस्ट शेल का, एंड एक हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स. सेम थिंग एप्लीकेबल ओवर हियर. ओके, सो एज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, दैट इज कार्बन. ओके, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का. यहाँ पे ऑल्सो
एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का. सेम ओवर हियर. So carbon atom consists of how many electrons? Here you can see 2, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, तो ये जो है ये यहाँ तक आ जाएगा नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, दैट इज़ 2,8. हियर ऑल्सो if we are going to combine carbon and hydrogen के electrons, then we will get over here that is 8 electrons. ओके, तो ये जो दो है, दो 2 electrons, which means one pair of electron, it will form one bond, okay, over here. Then this will form one bond over here, then this will form one bond, and here also it will form one bond over here. So this is called as what? Dot structure. Okay, and this is called as a line structure. It is very easy. Okay, so this is called as dot structure and line structure of methane. Okay, now here you can see if you want to prepare something for your project and all, so for that the models of methane molecule is here. This is called as a stick model, ball and stick model. Okay, this is called as a ball and stick model and this is called as a space filling model. ओके, तो आप ऐसे स्टिक लेके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना सकते हैं, बीच में कुछ ऐसे बॉल रख के कार्बन बना सकते हैं, लाइक दैट. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, येस. नाउ we are going to see a very deep we are going to learn about a very deep things about a carbon atom. So you all know that carbon is a versatile element. It has many uses. Okay, और ऐसे भी uses है जो you don't know. So that we are going to learn now. Okay, so students, we saw that carbon atoms, like some other atoms, share the valence electron to form a covalent bond. Yes, covalent bond में sharing ही तो होती है. Similarly, we also saw the structure of carbon compound methane. Yes, just now we have learned about that. Then the number of carbon compound formed from carbon is extremely large, which means what? कार्बन को लेके बहुत बड़ी वाली रिंग हम लोग फॉर्म कर सकते हैं. Here you can see that in the beginning we saw that except for the object formed from metals and glass soil, all the other objects are made from carbon. In short जो है, entire living kingdom is made up from carbon. Our body is made up of carbon. जो DNA होता है हमारे बॉडी में, so DNA molecules are made from carbon. Okay, so the molecular masses of carbon compound range up to 10⁻². इतना उसका molecular mass हो सकता है and it will range up to what? 10⁻². मतलब कार्बन को लेके कितनी बड़ी चेन हम बना सकते हैं. दिस मीन्स दैट द कार्बन एटम कम्स टुगेदर इन अ लार्ज नंबर to form extremely big molecules. Just it is shown like this. कार्बन का मिलके बहुत बड़ी रिंग we can form. Okay, it has no limit. So the carbon is a very versatile element. It can form a very big ring which has no limit and it will get another different compounds. Okay, yes. So the characteristics of carbon. There are some characteristics of carbon. That is, carbon has a unique ability to form strong covalent bonds with other carbon atom and this results in formation of big molecule. Carbon जो है उसकी ability है that is to form a strong covalent bond with other carbon atom. Okay, and this property of carbon is called as catenation power. कैटिनेशन पावर को क्या बोलते हैं? मतलब कार्बन को लेके हम बहुत बड़ी रिंग और बहुत बड़ा ब्रांच ऑफ कार्बन वी कैन फॉर्म. द कार्बन कंपाउंड कंटेन्स ओपन चेन और क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम. ओपन चेन कैन बी स्ट्रेट चेन और अ ब्रांच चेन. अ क्लोज चेन इज अ रिंग स्ट्रक्चर. So here you can see this is a structure of benzene. Okay, here you can see C6H6. कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है? 1 2 3 4 5 6 and hydrogen also 1 2 3 4 5 6. So this is a closed chain.
यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है ये एक चेन है विच इज़ क्लोज, ओके। एंड स्ट्रेट चेन मतलब क्या, ये जो है कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, राइट दिस, ओके, लाइक दैट। एंड ब्रांच चेन मतलब ऐसे जो ब्रांचेस है, दिस इज अ वन ब्रांच, दिस इज अ सेकेंड ब्रांच, ओके। स्ट्रेट चेन मतलब एक स्ट्रेट कार्बन चेन, एंड हियर दिस इज अ ब्रांच चेन। यहाँ पे भी ब्रांचेस हो सकते हैं, यहाँ पे भी ब्रांचेस हो सकते हैं, एज आई हैव टोल्ड इट हैज़ नो लिमिट, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज वॉट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन चेन। ये ओपन चेन है, और यहाँ पे यू कैन सी दिस इज अ क्लोज चेन। क्लोज चेन जो है वो हमेशा रिंग में ही होती है, एंड ओपन चेन है वो ऐसे ओपन रहती है, ठीक है। देन द टू कार्बन एटम्स कैन बी बॉन्डेड टुगेदर बाय 1, 2 or 3 covalent bonds. So it is called as a single bond, double bond or triple bond, as we have seen earlier. Due to the ability of carbon atom to form a multiple bonds as well as a single bond, the number of carbon compound increases. Yes, जितने bond form करेंगे हम वैसे ही carbon atom जो है, number of carbon atom it gets increases. For example, there are 3 compounds, that is ethane, ethene and ethine, which contain 2 carbon atom. यहाँ पे देखो ethane, इट हैज़ अ 2 कार्बन एटम, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम है और यहाँ पे भी 2 ही है, बट उनका फॉर्मेशन जो है दैट इज़ डिफरेंट. हियर यू कैन सी इट हैज़ अ डिफरेंट फॉर्मेशन बिकॉज यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड है. तो हम लोगों ने 2 कार्बन एटम यहाँ पे लिया एंड 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आई, ठीक है. दैट इज CH3. कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 6. सो 1 2 3 4 5 6 बिकॉज इट हैविंग अ सिंगल बॉन्ड. बट इफ़ इट इज़ हैविंग अ डबल बॉन्ड तो क्या होगा, CH2 एंड CH2 फॉर्म हो जाएगा. एंड इफ इट हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड देन ओनली CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है. येस. Then the third is being tetravalent. Tetravalent which means what, of 4 bond, okay. One carbon atom can form bonds with other 4 carbon atoms, carbon or any other. So this results in the formation of many compounds. For example, if we are going to take the different compounds are formed using one carbon atom, यहाँ पे देखो only one carbon atom है, okay, and 2 monovalent element and hydrogen and chlorine. सब में 1 ही कार्बन एटम लिया है एंड हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम लिया है, ओके. हियर यू कैन सी क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन की 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ओके. सो दैट वी कैन फॉर्म. Similarly, carbon atom form covalent bond with atoms of element like oxygen, nitrogen, sulfur, halogen which means what, chlorine, fluorine, bromine, iodine and phosphorus to form the different types of compound in a large number. ओके, इन शॉर्ट ऐसे ही ध्यान में रखना है कि कार्बन का बहुत बड़ी ब्रांच हो सकती है. द वे वी कैन फॉर्म द कंपाउंड इट हैज़ दैट लिमिट, ओके. इट डजंट हैज़ दैट काइंड ऑफ लिमिट टू अंडरस्टैंड इट. कार्बन की बहुत बड़ी वाली चेन भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं. देन द फोर्थ इज कार्बन हैज़ वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स which is responsible for large number of carbon compound and it is called as isomerism. तो यहाँ पे आप देखोगे कि C3H7 एंड Cl. C3 कार्बन के 3 कंपाउंड, ओके. देन हियर H7 यहाँ पे एक H लिया है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 4 + 3 7, ओके. एंड Cl का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया है, तो इसका क्या नेम हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है. 1 2 3 2 सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन है, सो 2 क्लोरोप्रोपेन विच मीन्स व्हाट, 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ओके. येस. एंड हियर द सेकेंड वाला थिंग, ये हो गया एक फॉर्म. यहाँ पे अब हम दूसरा फॉर्म यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट दिस स्ट्रक्चर, ओके. तो यहाँ पे भी 3 क्लोरीन है एंड 3 कार्बन एटम है एंड 7 हाइड्रोजन एटम एंड 1 क्लोरीन. बट दिस, इसका नेमिंग कैसे आएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, बिकॉज यहाँ पे
ये 1, ये 2, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे 1 पे क्लोरीन आएगा, दैट इज़ 1 क्लोरोप्रोपेन। ओके, ये सो दोनों के फॉर्म जो है वो डिफरेंट है, बट फॉर्मूला जो है वो ओनली 1 है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। Yes. So here some carbon compounds are given and its molecular mass is given. Okay. So go through this chart, which is very easy. Then hydrocarbon, saturated and unsaturated hydrocarbon. This is very easy. Students, you all know that carbon compound contains many elements. Yes. The compounds which contain carbon and hydrogen as the only two elements are called as hydrocarbon. हाइड्रो एंड कार्बन, अगर आप इसको डिफरेंट करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ओके, तो क्या होगा, हाइड्रो विच मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन विच मीन्स कार्बन। तो कंपाउंड जिसमें कार्बन है एंड हाइड्रोजन है उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन, दैट इज CH4, formed by combination of 1 carbon atom and 4 hydrogen atom. Yes, and ethane is one more hydrocarbon and its molecular formula is what, C2H6. यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H6. ठीक है, yes. So here you can see that the molecular formula of ethane is C2H6. Now how we are going to form this वाला thing, 2 कार्बन एटम यहाँ पे हो गए, 1, we have to take up 1 bond over here, that is a single bond carbon carbon, and use 6 हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसके साइड में ये 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आ गए, ये 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आ रहे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लाइन स्ट्रक्चर और द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। नाउ हियर यू कैन सी अ डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन, ये दोनों कार्बन कार्बन बीच में आ गए, ठीक है। सो ये कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन है रेड वाला, और ये कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन है रेड वाला, और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, यू कैन सी। सो दिस आर द 6 इलेक्ट्रॉन्स दैट ओनली वी आर गोइंग टू फॉर्म ओवर हियर। ओके, ये दोनों जो है ये दोनों यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे एक कार्बन का आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का आ गया, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन फॉर्म अ डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का ओवर हियर, ओके, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो हम लोग डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, येस। देन from the structural formula of ethane, it is seen that the valences of all the atoms are satisfied by single bond. Yes, तो यहाँ वहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, here you can see that this is a single bond, यहाँ पे single bond है। So जब single bond होगा तो इसको क्या बोलेंगे, saturated compounds. For example, ethane, propane, saturated hydrocarbons, they are also called as what, alkanes. जो सैचुरेटेड है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, उसको बोलेंगे अल्केन्स, ठीक है। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट द फॉर्मूला C2H4, C2H4, यहाँ पे हियर यू कैन सी C2H4, 2 कार्बन एटम है और उनको बीच में डबल बॉन्ड है, एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 4। सो दैट ओनली वी आर गोइंग टू कन्वर्ट ओवर हियर। 1 सिंगल बॉन्ड का कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 सिंगल बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। देन हियर दिस ओनली वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। 2 लोन पेयर, 2 पेयर है, दैट मीन्स 2 बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एज अ डबल बॉन्ड। सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंट फॉर्म। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड यूज़ किया है, येस। तो जब भी डबल बॉन्ड यूज़ करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करेंगे, सो इट इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर सिंगल बॉन्ड किया तो दैट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेटेड कंपाउंड, एंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किया तो इट इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो इथीन एंड इथाइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके, and the unsaturated hydrocarbon containing a carbon carbon double bond are called as alkenes, and जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसको बोलेंगे अल्काइंस, ठीक है, यस।
तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन सैचुरेटेड कंपाउंड. ओके, yes, so students, today we have learned about carbon, its characteristics, okay, and hydrocarbons, saturated and unsaturated. Saturated, which means single bond; unsaturated, which means double or triple bond. Saturated, which means alkanes, and unsaturated, which means alkenes and alkynes. Okay, yes, so go through the video. Thank you.